So here we are with our sixth video of chapter 6. The topic is maxima and minima. As the name suggests, we are going to find the value of x at which we will be getting the maximum value of y, and the value of x at which we will get the minimum value of y. So in this we are going to use the concept of derivatives to calculate the maximum or minimum value. There will be various tests through which we will be doing this process. So here comes our first definition. It is given on page number 217 of your book, definition number 3. Let f be a function defined on an interval I, then maximum value. F is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I is the interval whatever is given, such that fc is greater than fx for all x belongs to I. The number fc is called the maximum value of f in I, and the point C is called a point of maximum value of f in I. अब इसका मतलब समझते हैं. We are considering a C point in the given interval I. मान लीजिए यहाँ पर ये इसका ग्राफ है. दिस इज़ पॉइंट C. अब यहाँ ये जो ग्राफ बनता है ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कह लीजिए वो बनती है. अब इस पूरे ग्राफ में आप देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है, सिर्फ ये जो पॉइंट है जो सी पॉइंट का एफ सी है वही है सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू. सो दैट इज़ व्हाट वी आर टेलिंग हेयर कि जो एफ सी है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन सी. So this fc is known as the maximum value of f in C, and this point C at which we are getting this maximum value, this is known as the point of maximum value of f in I. ठीक है. So similarly we will be getting the minimum value also. When this is the maximum value, the other thing will be minimum value. Here it is written fc is greater than all fx. These are the fx. इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है वो fc है. ये हम बता रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल I. अब मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं. f is said to have minimum value in I if there exists a point C in I such that fc is less than fx. वहाँ पर क्या था? ग्रेटर देन fx था. मीन्स सारे fx में से सबसे बड़ा. यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी? सारे fx में से सबसे छोटा, मीन्स द लोएस्ट. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I. द नंबर fc इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f in I, and the point C in this case is called the point of minimum value of f in I. This is the same definition continuing on page number 217 of your textbook. अब इसका ग्राफ देख लेते हैं. यहाँ देखिए इसका ग्राफ. See this is the graph. This is the value of fy, fx और you can say y. ये ग्राफ बन रहा है. अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ ये सब बड़ी हैं वैल्यूज़ कंपेरेटिव टू दिस fc. तो यहाँ पर क्या लिखा था कि fc इज़ ऑलवेज लेस देन fx. मीन्स कोई भी वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँ इस y के रिस्पेक्ट में, तो ये fc का जो आपको दिख रही है ये लाइन, दिस c पॉइंट पे जो fc है दिस विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट c. अब आ जाता है आपका एक्सट्रीम वैल्यू. f is said to have an extreme value of f in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I. The number fc in this case is called an extreme value of f in I, and the point C is called an extreme point. अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कोई मैक्सिमम वैल्यू या कोई मिनिमम वैल्यू आ रही हो पॉइंट C पे. In that case we will be saying that there will be an extreme minimum or an extreme maximum within the given interval.
then we'll be according to this graph, you can see this graph is given in your book on page number 218. Let's see how we'll be finding this minimum and maximum value. Side by side we'll be doing the questions of exercise 6.5. we'll not continue with all the concepts and then we'll do the exercise. हम साथ के साथ क्वेश्चंस करते चलेंगे ताकि आपको बाद में समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हम साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है एक्सरसाइज 6.5 का, वो उन दोनों चीज़ों में हमें निकालना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी, यानी कि अगर है तो हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे 5 पार्ट्स हैं। अब आप यहाँ देखिए कि इसको करना कैसे है। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम एक पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज़ गिवन 9x² + 12x + c, ये हमारा फंक्शन गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी। एफ एक्स दिया हुआ है हमारे को बताना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर है तो क्या है। सो हाउ वील बी डूइंग दिस। हमने एफ एक्स को क्या किया, ट्राइंग टू मेक अ होल स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया और इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सी हियर, वी नो दिस इज़ द होल स्क्वायर, दिस इज़ 3x होल स्क्वायर। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन 2 × 3x into what is coming here, 2. So here it should be 4. Then we can say this will be the whole square. So we are adding 2 and subtracting 2. So after combining 9x² + 12x + 4, we will be getting it to 3x + 2 whole square, and this will be left as -2. Now what will be the minimum value of this? मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वैल्यू जो है 0 हो जाए। Now if this is 0, what is the minimum value left? This is 0 and this is -2. So the minimum value will be -2. And f, what will be the maximum value? Is there any maximum value which we can say? Since it is a whole square, it can get any maximum value. So we can write here fx does not have maximum value, hence no point of maximum in R. क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू अपनी मर्ज़ी से नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इट कैन गो टिल एनी नंबर। सो वी कैन नॉट से एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट अ मैक्सिमम वैल्यू। सो वी विल राइट इन द आंसर दैट इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इन आर। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखना है। अगेन लेट मी सी फ्रॉम द बुक कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सी हियर, ये आपकी बुक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। अब इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री है और मॉड्यूलस फंक्शन है। सो वील बी डूइंग 2 क्वेश्चंस so that you can complete these 2 questions in your notebook with this concept. So हमें यहाँ पर भी वही निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इफ़ एट ऑल दे आर हैविंग। तो यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन मॉड ऑफ x + 2 - 1। वी ऑलवेज नो कि ये जो मॉडुलस लग जाता है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। सो इफ़ दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R। अब हमें ये पता है कि ये जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या होना चाहिए, दिस विल बिकम 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1। बस यही लिखने का तरीका। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x + 2 विल बी 0। अगर हम इसको मैं -2 रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2, विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस -1। इसी के साथ सिर्फ हम बचेंगे तो हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू -1। अब इसके भी हमें मैक्सिमम वैल्यू भी सोचनी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे सोचें, x तो कोई भी वैल्यू हो सकती है सिंस इट इज़ बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, सो इट कैन हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। सो वी कैन नॉट से दैट एट x इज इक्वल टू दिस वी आर गोइंग टू हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू।
तो वी विल राइट दिस, देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4th पार्ट एक और कर रहे हैं। बाकी के पार्ट्स जो बचेंगे वो आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में और मुझे भेज देंगे कि यस वी आर डन विद इट। अब यहाँ देखिए, ये है एक f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। अब यहाँ पे ट्रिगो भी है और मॉडुलस भी है। हमें ये पता है कि साइन x का हम जब ग्राफ बनाते हैं, अब साइन 4x हो, साइन 10x हो, साइन ax हो, कुछ भी हो, हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बस 1 तक जा सकती है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 1 तक जा सकती है। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने यहाँ क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 दैट इज़ 4। मॉडुलस लगा है, 4 आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और मिनिमम वैल्यू जो है साइन 4x की हमें पता है कि -1 होती है। तो अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू यहाँ लगा दी साइन 4x की जगह पर -1। -1 + 3 कितना हो गया, 2। सो वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू एज 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू एज 4। आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद द थिंग्स। ठीक है, आपको इस तरीके से बिल्कुल इस 6.5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत है। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएंगे, इसके क्वेश्चंस करते चलिएगा साथ के साथ। अदरवाइज इन द लास्ट यू विल बी नॉट एबल टू डू द एक्सरसाइज। साथ के साथ करेंगे तो साथ के साथ डाउट भी पूछ लेंगे और आपका काम हो जाएगा। सो कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट और अगले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। हैव अ गुड डे।